हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और अब हम जा रहे हैं बताने आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन लीड्स टू 3 अदर टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज। यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जो है उससे 3 और भी सिंगुलरिटीज प्राप्त हुए, जिनका नाम, पहले का नाम है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरे का नाम है पोल और तीसरे का नाम है इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये कैसे मिलते थे इस बात को हम अभी चर्चा करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज सिंगुलरिटीज। लेट अस टेक लेट z is equal to a is an isolated singularity of fz, means that fz is analytic, at every point in the neighborhood of z is equal to a. So we can say fz is analytic in the ring-shaped region bounded by r is less than mod of z minus a is less than capital R, where r is very small, r is very small, and capital R is very large. Thus, we can expand fz with the help of by Lorentz expansion. fz is equal to, that is fz is equal to sigma n is equal to 0 से infinite an z minus a to the power n plus sigma n is equal to 1 से infinite bn upon z minus a to the power n. This is taken as equation number 1. हमने क्या किया कि z बराबर a ले लिया, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है fz का। इसका ये मतलब होता है कि fz जो होगा वो एनालिटिक होगा एट एवरी पॉइंट और इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू a। यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने का मतलब है कि z के नेबरहुड में हर एक पॉइंट पर एनालिटिक हुआ। यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a। z इज इक्वल टू a के नेबरहुड में होगा एनालिटिक, लेकिन z इज इक्वल टू a के अलावा। So we can say fz is analytic in the ring shaped region। ये r को हम 0 ले लें, इस r को इन्फिनिटिव ले लें, तो a को छोड़ के 0 से ये रिंग बनेगा, a को छोड़ के, क्योंकि ये सर्किल हो जाएगा। इस सर्किल के अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। और इस रिंग, चूंकि रिंग बन रहा है, इस वजह से हम लॉरेंस एक्सपेंशन से इस fz को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन इज इन असेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस a एंड अदर सीरीज इज इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 it is very clear that the function fz can be expressed as
ascending powers of z minus a and z, and another way in descending powers of z minus a. So from 1, the first series sigma n is equal to 0 से infinite an z minus a to the power n in the right hand side is known as regular part of fz, whereas the second series sigma n is equal to 1 से infinite bn upon z minus a to the power n is known as principal part of fz, known as principal part of fz. And these principal parts this principal part leads to define other singularities of fz which are given below. Number 1 is removable singularity. Number one is removable singularity. Removable singularity जानने से पहले मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल पार्ट लीड्स टू डिफाइन other singularities of fz which are given below. Number 1 is removable singularity. If the principal part of fz is 0, that is bn is equal to 0. That is bn is equal to 0 for all n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Then the isolated singularity z is equal to a. Z is equal to a is called removable singularity. Is called removable singularity. In other word, we can say, the isolated singularity z is equal to a is called removable singularity of fz if
Z tending to A abject exists and finite with Fz is not defined at Z is equal to A. With Fz is not defined at Z is equal to A. The isolated singularity Z is equal to A is called removable singularity of Fz if limit Z tending to A, Fz exists and finite with Fz is not defined at Z is equal to A. Let us consider some examples. Example number 1. Fz is equal to sin Z upon Z when Z is not equal to 0. Meaning thereby this function is not defined at Z is equal to 0. So which type of singularity this belongs to? अब हम देखें तो इसको दो तरह के डेफिनेशन मैंने बताया था कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी में अगर किसी फंक्शन का एक्सपेंशन किया जाए और उसके एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट एक भी ना हो तो वो जिस पॉइंट के अबाउट उसका एक्सपेंशन किया जाए उसके एक्सपेंशन में उस पॉइंट के अबाउट अगर प्रिंसिपल पार्ट एक भी ना हो यानी निगेटिव पावर्स ऑफ जेड ना मिले या जेड माइनस ए ना मिले अगर ए की बात करी जाए तो वो जेड बराबर ए कहलाता है आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरे शब्दों में जेड इज इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी तब कहा जाएगा जब लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफजेड एग्जिस्ट करता हो और एफजेड जो है जेड बराबर ए पर डिफाइंड ना हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ जेड बराबर 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, बट हियर वी फाइंड लिमिट जेड टेंडिंग टू ए 0 एफजेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 sin z by z is 1 is not equal to 0. 1 exists and finite, that is limit z tending to 0 sin z upon z exists and finite but not defined at z is equal to 0. So z is equal to 0 is removable singularity of fz. ये कह सकते हैं। इसी चीज को दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल पार्ट का हवाला देते हुए। इन अदर वर्ड जैसे आपका एफ एक्स था, एफ जेड आपका था साइन जेड अपॉन जेड, इसको हम बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड इंटू साइन जेड को एक्सपेंड करें अगर हम, इसका आता है जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब यहां पर 1 बाई जेड से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब आप ही बताइए कि क्या ये जेड माइनस 0 के पावर्स में है, नेगेटिव पावर्स में है, ये सारे के सारे पॉजिटिव पावर्स में है। का मतलब हो गया कि ये जेड के पॉजिटिव पावर में होने का मतलब हो गया कि इसका प्रिंसिपल पार्ट आपका 0 है। तो यहां कह सकते हैं कि फ्रॉम एबव it is clear that the principal part चाहे we can say it is clear that fz is equal to sin z upon z
does not contain principal part so z बराबर 0 is removable singularity. ऑफ एब्जेक्ट। तो हमने आपको इस फंक्शन के एग्जाम्पल के थ्रू दोनों डेफिनेशन जो लिखा है, पहले शब्दों में जो लिखाया था वो था कि इस फंक्शन का एक्सपेंशन किया जाए और उसमें कोई भी नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस 0 ना मिले तो z बराबर 0 कहलाएगा आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एब्जेक्ट, जो यहाँ हो भी रहा है। दूसरे भाग शब्दों में मैंने एक्सप्लेन किया था कि z टेंडिंग टू 0 एब्जेक्ट की वैल्यू फाइनाइट मिल जाए और वो फंक्शन z बराबर 0 पर डिफाइन ना हो, तो ऐसे में हमने देख लिया था कि इसकी वैल्यू आई थी 1 और z बराबर 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं था, इस वजह से z बराबर 0 वो आपका कहलाता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सेकेंड वन इज O. If the principal part of a object contains finite number of points, finite number of terms, that is Bn is equal to 0 for n is greater than some m. Principal part of object contains finite number of terms, that is Bn is equal to 0 for n is greater than m, means the object is sigma n is equal to 0 से infinity an z minus a to the power n plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a का square plus dash dash bm minus 1 upon z minus a to the power m minus 1. Z is b1 and here is b2 and dash dash greater than or equal to, we can say if bn is, if principal part of object contains finite number of terms, that is bn is equal to 0 for n is greater than or equal to m. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b1 upon z minus a, b2 upon z minus a का स्क्वायर and we can say bm upon z minus m to the power m. इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, इसके बाद वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं क्योंकि bn जो है ये m के अलावा ग्रेटर देन m, m से आगे जब बढ़ेंगे यानी m प्लस 1 जाएंगे, m प्लस 2 जाएंगे, उसके लिए आपका bn 0 है। तो हमारे पास ये मिल जाता है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट ऑफ z कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज bn इज ग्रेटर देन 0, bn इज इक्वल टू 0 फॉर n इज ग्रेटर देन m, then z is equal to a, then isolated singularity z is equal to a is called pole of object of order m। अगर उसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, m टर्म्स है, मान लीजिए प्रिंसिपल पार्ट में आते हैं, ये पहला टर्म हुआ प्रिंसिपल पार्ट का, तो रेगुलर पार्ट हो गया, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, और m टर्म्स इसके अंदर आते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कहलाता है पोल ऑफ z, ऑब्जेक्ट का z बराबर a को कहलाता है पोल ऑफ ऑर्डर m। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में the isolated singularity z is equal to a is called
पोल ऑफ एफजेड ऑफ ऑर्डर m if limit z tending to 0 a z minus a to the power m fz is equal to some finite number not equal to 0। अगर हम ऐसे भी चेक करना है किसी फंक्शन का कि वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है कि नहीं, उस पॉइंट का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को चेक करना है कि क्या वो पोल है कि नहीं ऑर्डर m का, तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे z टेंडिंग टू a z माइनस a टू द पावर m fz। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये जो z बराबर a है वो पोल ऑफ fz है ऑफ ऑर्डर m। इसके लिए आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंसीडर करने पड़ेंगे और मैं पहले एक बार और फिर समझा देता हूं कि देखिए हमने आपको बताया था कि z बराबर a अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उसको किस तरह से हम फंक्शन को लॉरेंट सीरीज से दो पार्ट में बांटते हैं। एक सीरीज का नाम है जो कि फंक्शन के एक सीरीज का नाम है रेगुलर पार्ट, दूसरा है आपका प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में क्या होता है b1 b2 b3 b1 अपॉन z माइनस ए b2 अपॉन z माइनस ए b2 अपॉन z माइनस ए का स्क्वायर b2 अपॉन प्लस b3 अपॉन z माइनस ए का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो ये प्रिंसिपल पार्ट में आपने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट की वजह से जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थी वो तीन पार्ट में बट गई। एक पार्ट मैंने बताया था आपको रिमूवेबल सिंगुलरिटी, उसमें क्या था कि सारे प्रिंसिपल पार्ट जीरो हो जाए, यानी उसमें प्रिंसिपल पार्ट ना हो उस एक्सपेंशन में, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर दूसरा कहलाता है पोल, अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, जैसे अगर एक टर्म हो जाए, दो टर्म हो जाए, 10 टर्म हो जाए, यहाँ पर हमने m टर्म्स लिया है, तो हमने ये कहते हैं कि द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड पोल ऑफ fz ऑफ ऑर्डर m। इसके दूसरे शब्दों में हमने डिफाइन किया the isolated singularity of z is equal to a is called pole of fz of order m if limit z tending to a z minus a to the power m fz is equal to a is not equal to 0। तो ये था आपका पोल की डेफिनेशन। अब हम इसको चाहे तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं। लेट अस हैव एन एग्जांपल्स। सपोज fz is equal to z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर, एक हम ले लेते हैं। अब जरा सोचिए कि इस फंक्शन के बारे में हम देखें तो यहां पर fz बराबर है z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, और हम ये कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट z is equal to 1 is isolated singularity of fz। सिंगुलरिटी ऑफ fz, ये fz जो z बराबर 1 जो होगा वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। अब ये आइसोलेटेड में किस तरह का है, पोल है कि रिमूवेबल है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर z माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो हमारा डेफिनेशन 2 कहता है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z बराबर a, अगर ये पोल ऑफ ऑर्डर m है तो वो आपको z टेंडिंग टू a z माइनस a का पावर m fz बराबर a होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड कि अगर हम देखें हियर वी फाइंड लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू fz, देखते हैं क्या आता है। ये आपका हो जाएगा z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू fz, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस a का होल स्क्वायर, fz की वैल्यू है z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कैंसिल होगा, लिमिट भरेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 which is not equal to 0, hence z is equal to 1 is a pole of order 2,
z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ले सकते हैं। Discuss the next example is discuss the singularity of fz is equal to 1 upon sin z minus cos z at z is equal to pi by 4। इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे गिवन दैट, तो हमारे पास fz इज इक्वल टू 1 अपॉन sin z माइनस cos z है। अब हम देखेंगे कि इसकी सिंगुलरिटी कैसे निकलती है। सिंगुलरिटी के लिए मैंने बताया था आपसे कि इसके डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि फॉर सिंगुलरिटी ऑफ fz, फॉर सिंगुलरिटी ऑफ fz sin z माइनस cos z इज इक्वल टू 0 और sin z इज इक्वल टू cos z और sin z upon cos z is equal to 1 or tan z is equal to 1 and this is equal to tan pi by 4. This implies z is equal to pi by 4. So z is equal to pi by 4 is an isolated singularity of fz. Because fz is analytic at each point in the neighborhood of z is equal to pi by 4. So it is an isolated singularity. अब हमको देखना है कि ये क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कौन सी सिंगुलरिटी लीड करती है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पोल है। इसके बारे में जानकारी के लिए हम आपको डिस्कस करते हैं। नाउ we see that limit z tending to pi by 4 z minus pi by 4 इंटू fz देखा जाए क्या आता है। तो इसके लिए हम आगे बढ़े, यहां होगा लिमिट z इज टेंडिंग टू पाई बाई 4, यहां हो जाएगा z माइनस पाई बाई 4 और fz इज 1 अपॉन sin z minus cos z। That is, we can say limit z tending to pi by 4 z minus pi by 4 divided by sin z minus cos z। अब जरा ध्यान से देखें, इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट निकालने के लिए हमको पता है एल हॉस्पिटल रूल। ये क्योंकि 0/0 का फॉर्म है, z बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज 0 एंड साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/2 0, सो इट इज 0/0 बाई एल हॉस्पिटल रूल। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू पाई बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन cos z, अब cos z क्या हो जाता है माइनस साइन z, और इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 1 बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2 and this is equal to √2 upon 2. Which is finite. Hence
equal to pi by 4 is a pool of abject of order 1. Pool of abject of order 1. So we have seen for the example, abject is equal to 1 upon sin z minus cos z. We can say z बराबर pi, z is equal to pi by 4 is a pool of abject of order 1. Or you just write here note number 1, a pool of order 1 is known as simple pool. Number 2, a pool of order 2 is known as double pool. ये हमारे पास दो नोट था और मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज इसेंशियल सिंगुलरिटी। If the principal part of Lorentz expansion of abject about z is equal to a contains infinite number of terms, then the isolated singularity that is equal to a is called essential singularity of abject. Z is equal to a is called essential singularity of abject. If the principal part of Lorentz expansion of abject about z is equal to a contains infinite number of terms, then the isolated singularity z is equal to a is called essential singularity of abject. In other words, the isolated singularity is called essential singularity if it is neither removable singularity nor a pool, यानी कि ऐसे सिंगुलरिटी जो न तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो और ना ही पोल हो, ऐसे सिंगुलरिटी को हम कहते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एब्जेक्ट। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ये एब्जेक्ट इज इक्वल टू e to the power 1 upon z minus 2, e to the power 1 upon z minus 2। अब देखेंगे हम इसमें कि z बराबर 2 जो है
एक सिंगुलरिटी है इसका, इट इज क्लियर दैट z is equal to 2 is an isolated singularity of fz, but we see that, लेकिन हम देखते हैं कि इस fz को एक्सपेंड किया जाए e के पावर fz से, तो e के पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ x जगह पर है 1 अपॉन जेड, यहाँ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन जेड माइनस 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। From above it is clear that we see that the expansion of fz contains principal part, infinite number of principal part, and contains principal part having infinite number of terms. Number of terms about z is equal to 2. Hence, z is equal to 2 is an essential singularity of fz. Essential singularity of fz. तो ये हमारे पास इसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन हो गई, उसका एक एग्जाम्पल हो गया, और इससे संबंधित और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप करेंगे। जो डाउट होगा उसको व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोनिक कॉल करके, मोबाइल से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो है आपका वो बताना है रेजिड्यू, और रेजिड्यू के लिए हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिड्यू क्या होता है और फिर रियल डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग तो हम आसानी से ये यूनिट 5 यानी कि मॉड्यूल 5 कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।